Ribantikasi haskul barahase kitkin barahasa. Zephaniah 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter हम पढ़ेंगे. किंग्स जेम्स वर्शन में से. रिदी लबाहा सेखेतीन रबाहा खासी यांतुकम बासा. अजीज किन बा ओसीला रहा अतित किन बा ओशकर खातीन रबान तखासा. जदीन जदीन जकित किन बा असील रबान तखास सेखित किन बरहासा. हम ज़फनिया फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन पढ़ने के लिए हमारी सहायता करो. हमें इस वचन के अंदर के भेद जाहिर करो. हमारे अंदर का फाउंडेशन मजबूत करो. विश्वास बढ़ाओ. नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं. सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन आमीन. Introduction. When Zephaniah prophesied God's severe judgments against Judah for diverse sins, first verse, the word of the Lord which came unto Zephaniah, the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hakiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, I will utterly consume all things from off the land, saith the Lord. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven and the fishes of the sea and the stumbling blocks with the wicked. And I will cut off man from off the land, saith the Lord. I will also stretch out mine hand upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chimarians with the priests, and them that worship the host of heaven upon the house tops, and them that worship and that swear by the Lord, and that swear by Malcham, and them that are turned back from the Lord, and those that have not sought the Lord, nor inquired for him. Hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests, and it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice, that I will punish the princes and the king's children, and all such as are clothed with strange apparel. In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters' houses with violence and deceit. And it shall come to pass in that day, saith the Lord, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills. Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down, all they that bear silver are cut off. And it shall come to pass at that time that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lease, that say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation. They shall also build houses, but not inhabit them. And they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof. The great day of the Lord is near. It is near, and hasteth greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord. And their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Chapter 2. Exhortation to return to God by repentance. Judgments on the
Philistines, on Moab, Ammon, on Ethiopia, and on Assyria. First verse. Gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation. They shall drive out Ashdod at the noonday, and Ekron shall be rooted up. Woe unto the inhabitants of the sea coast, the nation of the Kerethites. The word of the Lord is against you, O Canaan, the land of the Philistines. I will even destroy thee, that there shall be no inhabitant, and the sea coast shall be dwellings and cottages for shepherds and folds for flocks, and the coast shall be for the remnant of the house of Judah. They shall feed thereupon in the houses of Ashkelon, shall they lie down in the evening, for the Lord their God shall visit them and turn away their captivity. I have heard the reproach of Moab and the revilings of the children of Ammon, whereby they have reproached my people and magnified themselves against their border. Therefore, as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles and salt pits and a perpetual desolation. The residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. This shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the people of the Lord of hosts. The Lord will be terrible unto them, for he will famish all the gods of the earth, and men shall worship him, every one from his place, even all the isles of the heathen. Yea, Ethiopians, yea, also, yea, shall be slain by my sword. And he will stretch out his hand against the north and destroy Assyria, and will make Nineveh a desolation and dry like a wilderness, and flocks shall lie down in the midst of her, and all the beasts of the nations, both the cormorant and the bittern, shall lodge in the upper lintels of it. Their voice shall sing in the windows, desolation shall be in the thresholds, for he shall uncover the cedar work. This is the rejoicing city that dwelt carelessly, that said in her heart, I am, and there is none beside me. How is she become a desolation, a place for beasts to lie down in? Every one that passeth by her shall hiss and wag his hand. Chapter 3. The princes of Jerusalem reproved. Exhortation to wait for the restoration of Israel. First verse. Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city. She obeyed not the voice, she received not correction. She trusted not in the Lord, she drew not near to her God. Her princes within her are roaring lions, her judges are evening wolves. They gnaw not the bones till the morrow. Her prophets are light and treacherous persons. Her priests have polluted the sanctuary. They have done violence to the law. The just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning doeth he bring his judgment to light. He faileth not, but the unjust knoweth no shame. I have cut off the nations, their towers are desolate. I made their streets waste, that none passeth by. Their cities are destroyed, so that there is no
man that there is none inhabitant. I said, surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction, so their dwelling should not be cut off, howsoever I punished them. But they rose early and corrupted all their doings. Therefore wait ye upon me, saith the Lord, until the day that I rise up to the prey, for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger. For all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord, to serve him with one consent. From beyond the rivers of Ethiopia, my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering in that day. Shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me? For then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. I will also live in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the Lord. The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth, for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. The Lord hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy, the King of Israel. Even the Lord is in the midst of thee, thou shalt not see any more. In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Zion, let not thine hands be slack. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a burden. Behold, at that time I will undo all that afflict thee, and I will save her that halteth, and gather her that was driven out, and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. At that time will I bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय प्रकाशित वाक्य नहीं, सफन्या को पढ़ेंगे। सफन्या 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय। सफन्या 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिया का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, परमेश्वर के न्याय का दिन दो वचन से आगे, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं की पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर को छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ये ध्यान रखिए आप इस बात को। ओके, मसीही जीवन में आने के बाद अगर फिर भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो
पौलुस भी बोल चुका है, ऐसे ऐसे काम करने वालों को ये वहम में नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है कि उनको स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया जाएगा। ठीक है, आपको ये बातें महत्वपूर्ण, यहाँ पर परमेश्वर भी घृणा करता है इन बातों को। तो आपने अगर इन बातों को मसीह होने के बाद किया होगा तो फिर आप भी घृणित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको भी घृणा करता है और परमेश्वर बख्शता नहीं है, क्योंकि वो अधर्मियों का परमेश्वर नहीं है, वो अधर्म को साथ देने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको मसीह बनाया, इसकी वजह से आप ऐसा कुछ भी करते बैठेंगे और परमेश्वर चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो बाइकआउट कर देगा आपको उसके राज्य के अंदर से। वो महान स्वामी है परमेश्वर, वो स्वामी और मास्टर है। ओके, वो आपको रख भी सकता है, हटा भी सकता है। इसीलिए कहा है ना रोमियो के पत्री में भी कि जो दाखबारी ऐसी थी कि वो सच्ची में दाखबारी थी, उसको परमेश्वर ने नहीं बख्शा। जो इस्राएल उसकी दाखबारी थी, उसको नहीं बख्शा। ओके, तो हम तो सिर्फ कलम किए गए हैं, इस्राएल के साथ जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब हमको क्या बख्शेगा वो, है ना। जो ओरिजिनल उसकी जाति है उसको नहीं बख्शा, तो हम तो कलम लगाए हुए हैं, तो फिर हमारे बारे में वो क्यों नहीं ऐसा रहेगा, कड़क, ओके, ज़्यादा स्ट्रिक्ट, है ना। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, ये परमेश्वर अधर्मियों का परमेश्वर नहीं है, 50-50 चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। फुल 100% लोगों को वो चाहता है कि वो 100% उसकी ओर से रहे, बाकी सब कुछ का उनके जीवन के अंदर से ख़त्म होता रहे, सिर्फ परमेश्वर का ही सब कुछ बना रहे। ये वो परमेश्वर है और उन्हीं के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेज रहा है, जो ऐसा एकमात्र परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसी परमेश्वर के जनों को यीशु मसीह उठाकर लेकर जाने वाला है। ओके, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसके विषय में अभी तक निश्चिंत रहे हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं मानता है, अधर्मियों को नहीं मानता है वो। ओके, अधर्मियों के चाल चलन को छुड़वाता है वो, है ना। नहीं तो वो कुरनेलियुस को क्यों कुरनेलियुस के दान अर्पण के बदले में उसको उद्धार क्यों देता परमेश्वर, है ना। दान धर्म देना उसका मान्य हो गया परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर का रिवॉर्ड क्या आया, रिवॉर्ड उसको उद्धार आया, है ना। तो अगर परमेश्वर चाहता कि कुरनेलियुस जैसे अवस्था में उसी प्रकार से वो अपने भक्ति का जीवन जीता रहे, यहूदी नहीं है फिर भी चलता रहे ऐसे, तो क्यों रिवॉर्ड भेजता उद्धार का, है ना। तो उद्धार का रिवॉर्ड का मतलब ही बनता है बाकी सारी शक्तियों से हमको अलग हो जाना पड़ता है। ठीक है, उसी को उद्धार कहा जाता है, उसी को मसीही कहा जाता है। ओके, 50-50 या 50-60 या ऐसा कोई पोर्शंस नहीं है, सारा 100% केवल मसीह की शक्ति में ही हमको चलना है। आमीन, और वही मसीह ही है। तो 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। ये सारा माहौल अभी के समय आपको संभाल लेना है। ओके, आपके लाइफ में कोई भी ये माहौल दिख रहा होगा तो प्लीज़ आप उसमें से पीछे हट जाइए और केवल यीशु मसीह के अंदर, मतलब सही तरह से प्रभु यीशु मसीह जो रास्ते सिखा रहा है उसमें आप सही तरह से पवित्र वचन के आधार से हो जाइए। ओके, क्योंकि ये एक समय है, परमेश्वर ने बोल दिया है और ये भी बोला है ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसी महाभयानक पीड़ाएं रहेगी यीशु मसीह के आगमन हो जाने के बाद में। तो आपको उस पीड़ाओं को सहना है, तो आप सोचे भी नहीं है, वो वाली पीड़ाएं अभी तक बाकी है आना। ओके, 10 वचन से आगे। यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशना का में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मकतेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है।
उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है। ओके, तो जो जिस प्रकार का आपका विश्वास आप चल रहे हो, ये सारा वर्णन आप हम सबको इकट्ठे सोचकर अपने आप में सुधार लाना है। ठीक है। 14 वचन, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। पश्चाताप का आह्वान 2 अध्याय पहले वचन से, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। इस्राएल के पड़ोसी राज्यों का पतन। 4 वचन से आगे, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा कि वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। मोवाब ने जो मेरी प्रजा के नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश के सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोवाब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगी और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा के नाम धराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने स्थान में उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर का नाश करेगा और निनवे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और साही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे।
उसकी डेवढ़ियाँ सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती है और निडर बैठी रहती है और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहाँ तक कि जो कोई उसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। 3 अध्याय पहले वचन से। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपना परमेश्वर के समीप नहीं आई, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हकीम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार है, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जाती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान दिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। आनंद का गीत 14 वचन से आगे। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते थे, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में अपना जीवन देते हैं पिता। आप चाहते उस धार्मिकता के रास्ते से हमको शरीर में भी चलाइए पिता परमेश्वर। हम शरीर में धार्मिकता के रास्ते चलने दीजिए, हम शरीर में पवित्र परमेश्वर तेरे मार्ग चलने दीजिए, तेरे सच्चाई और धर्म के मार्ग हम में चलाए जाएं। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए। विनती करते हैं डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 2 चैप्टर 37 वर्स से 47 वर्स, एजरा 1 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन से 47 वचन तक, एजरा 1 अध्याय। हम पढ़ेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अकेले में बैठकर, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में, ताकि हमारा जीवन सुधार किया जाए। जब हम अकेले में बैठकर अकेले में ये बाइबल को रीड कर रहे होंगे, हमारे अकेले के बारे में परमेश्वर हमको कुछ बात करेगा। जैसा हमको होना चाहिए वैसा सुधार हमको मिलने के लिए रास्ता देगा वो, और हम बचा लिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ये होना है, इसीलिए अकेले में हम ये बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने तरह से इसे पढ़ना चाहते हैं, आप वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना ही है कि परमेश्वर का आत्मा ही एकमात्र कारण है जो हमें इस बाइबल स्टडी में मार्गदर्शन करता है, और ये पवित्र आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमारा जीवन फिट एंड फिक्स कीजिए आपके वचन के अंदर। हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।